सो अग्रवाल मैम बताएं, वेयर आर यू फ्रॉम? From Faridabad, sir. ओके, एंड यू आर अ हाउसवाइफ? Yes, sir. I'm a housewife. Okay, and being a housewife, you are learning English, ma'am. What is the reason? Finding a job. Like I'm improving my English and I find a job. Okay, चलिए अच्छी बात है. Now I'm asking you very simple sentences, ma'am. You just have to reply me. Okay? हाँ, the first sentence is, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहती हूँ. I am a housewife and I want to improve my spoken English. Excellent. मेरे पास समय नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए. I don't have time to learn English. Excellent. मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक जॉब होल्डर हूँ. I am not a housewife. I am a job holder. मुझे जॉब करना है. I have to do job. क्या बोलोगे? मुझे जॉब करना है क्या? I have to do a job. I have to do job. Okay. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. I want to learn English. मेरे पास समय है. I have a time. I have time. मेरे पास अपने आप को इंप्रूव करने के लिए समय है. I have a time to improve myself. I have time to improve myself. जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास थी, और मेरे पास अपने आप को इंप्रूव करने के लिए समय होगा. I will have time to improve myself. Excellent. I will have time to improve myself. Okay. वो एक अच्छा डॉक्टर है. He is a good doctor. He is a good doctor. वो एक अच्छा डॉक्टर था. He was a good doctor. He was a good doctor. है था. और वो एक अच्छा डॉक्टर होगा. He will be a good doctor. He will be a good doctor. Right? वो बिजी है. He is busy. Is busy. वो बिजी था. Was busy. और वो बिजी होगा. Will be busy. Excellent. उसके पास सब कुछ है. He has everything. उसके पास सब कुछ था. He had everything. उसके पास सब कुछ होगा. He will have everything. He will have everything. मैम, आपने ये टू बी इन परफेक्ट टेंस आपको आया समझ में? ओके. आपने कहा मैं इस क्लास में हूं. I am in this class. मैं इस क्लास में 10 दिन से हूं. इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? I have been in this class for 10 days. एक्सीलेंट. जब आप कहीं पर एक समय से हो तो वहां पर आप इसका उपयोग करते हो कि I have been in this class for 10 days. Since oblique 4 plus time. मैं इस क्लास में 10 दिन से हूं. I have been in this class for 10 days. मैं इस क्लास में 10 दिन से था पास्ट में. I had been in this class for 10 days. I had been in this class for 10 days. और मैं इस क्लास में 10 दिन से होऊंगा. I will have been in this class for 10 days. I will have been in this class for 10 days. Right? चलिए, ऐसे ही जब कोई चीज आपके पास एक समय से है. मेरे पास ये सेलफोन कई सालों से है. I have had this cell phone since many years. I have had this cell phone for many years. अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनका आज फर्स्ट डे है या सेकंड डे या थर्ड डे है. आई गारंटी उनको ये समझ में नहीं आ रहे होंगे. सो अभी सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुनो. मैं सारी चीजें जो जो लिख रहा हूं बोर्ड पर, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. डोंट वरी. ओके. मैं सोचता हूं. I think. मैं बोलता हूं. Speak. मैं बोल सकता हूं. Speak. मैं आपको जानता हूं. To you. आप सिर्फ इतना करिए कि कमलेश मैम के साथ में बोलने की कोशिश करिए. जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास में नए हैं, रिक्वेस्ट यू जस्ट हैव टू स्पीक विद कमलेश मैम. ओके. ये मेरा पेन है. My pen. दिस इज माई पेन. यह मेरा पेन 2 साल से है. This has my pen For since 2 2 years. days. For 2 years. This has been my pen for 2 years. बोलो. This has my pen for 2 years. This has been my pen for 2 years. यह मेरा पेन था. This had been my pen for 2 years. No, था, सिर्फ था. This was my pen. That's quite easy. Was my pen? Yes, sir. Sorry, Okay. sir. मैं बिजी हूं. I'm busy. I'm busy. मैं क्लास में हूं. I'm in a class. I'm in class. मैं स्कूल में हूं. At school. I'm in school. मैं अपनी फैमिली के साथ हूं. With my family. I'm with my family. मैं दौड़ सकता हूं. I can run. मैं पढ़ा सकता हूं. I can teach. I can teach. आपको पढ़ाना चाहिए. Should teach. You should teach. आपको यहां आना चाहिए. Come here. You should come here. आपको यहां आना पड़ेगा.
You have to come here. You will have to come here. Okay. मैं तैयार हूं. Ready? मैं सुबह से तैयार हूं. I have been ready since morning. मेरे पास ये पेन सुबह से है. I have had this pen since morning. मेरे पास ये पेन 2 दिन से था. I had this pen since for 2 days. Okay. और मेरे पास ये पेन 2 दिन से होगा. I will have had this pen for 2 days. अब जिनको हेड में दिक्कत आ रही है कि सर ये बार बार हेड लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो एक और आपके पास चॉइस है कि आप इसकी जगह गॉट भी यूज कर सकते हो. क्या कह सकते हैं मैम हम? गॉट. गेट की थर्ड फॉर्म गॉट है ना. आई हैव हैड दिस पेन की बजाय आप ये भी कह सकते हो आई हैव गॉट दिस पेन. मेरे पास ये पेन 2 दिन से है. आई हैव गॉट दिस पेन फॉर 2 डेज. और यू कैन से आई हैव हैड दिस पेन फॉर 2 डेज. मेरे पास ये पेन 2 दिन से था. आई हैड हैड दिस पेन फॉर 2 डेज. और यू कैन से आई हैव गॉट दिस पेन फॉर 2 डेज. मेरे पास ये पेन 2 दिन से होगा. आई विल हैव हैड दिस पेन फॉर 2 डेज. और यू कैन से I will have got this pen for 2 days. Getting? Okay. हाँ. मैं स्कूल में हूं. School. I'm in the school. मैं इस स्कूल में 2 साल से टीचर हूं. I have been in this school a teacher. देखो For अब 2 इसमें years. टीचर को हम पहले रख लेंगे ना. I have been a teacher. हाँ. I have been a teacher in this school for 2 years. बोलिए क्या बोलोगे? I have been a teacher in this school for 2 years. Excellent. I have been a teacher in this school for 2 years. मैं 2 साल से इस स्कूल में टीचर था पास्ट में. I had been a teacher in this school for 2 years. Excellent. मैं इस स्कूल में 2 साल से टीचर होऊंगा. I will have been a teacher in this school for 2 years. Excellent. मैंने कहा वहां जाओ. Go there. Go there. वहां मत जाओ. Go there. Don't go there. वहां कभी मत जाओ. Go there. Never go there. ठीक है. That is कभी मत. Sentences कभी मत बनाओ. Never make sentences. Sentences हमेशा बनाओ. Make sentences. हमेशा. Always. ठीक है. हमेशा दूसरों की मदद करो. Help others. Always help others. चलो हम इंग्लिश सीखें. Let's learn English. मुझे इंग्लिश सीखने दो. Let me learn English. Let me learn English. Okay, कमलेश मैम, बेसिक इंग्लिश में सेंटेंसेस आपके ठीक बन रहे हैं. नो डाउट, यू आर ट्राइंग वेल एंड आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द सेशन रेगुलरली. Thank you. Okay, कमलेश मैम, you tried well. Let's move on to the next. We have SK यादव. चलो. Yes sir. मैं बिजी हूँ. I am busy. पहले आप मुझे बताइए, एक टॉपिक है जिसका नाम है टू बी और एक टॉपिक है टू हैव. इसमें क्या डिफरेंस है? टू बी और टू हैव के बीच में क्या अंतर है? टू बी में कुछ के लिए पास, कुछ के लिए होता है, और टू हैव में पास. हाँ, टू बी का मतलब होता है कुछ होना, कहीं होना. हाँ जी. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और टू हैव का मतलब क्या होता है? कुछ होना या फिर कहीं होना. टू हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना. पास होना. ठीक है. जैसे आपने कहा मेरे पास समय है, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल्स है. जो चीज आपके पास है दैट इज टू हैव, है ना. और जिसमें आप कुछ है दैट इज टू बी. मैंने कहा मैं घर पर हूं. आई एम एट होम. आई एम एट होम. आई एम एट होम. मैं घर पर हूं. आई एम एट होम. मैं घर पर था. आई वाज एट होम. एक्सीलेंट. मैं घर पर होऊंगा. आई विल बी एट होम. आई विल बी एट होम. एक्सीलेंट. मेरे पास समय है. आई हैव एनी टाइम. आई हैव टाइम. आई हैव टाइम. मेरे पास समय था. आई हैव टाइम. और मेरे पास समय होगा. आई विल हैव टाइम. वेरी गुड. आई विल हैव टाइम. ओके. मैं सुबह से यहां हूं. आई हैव बीन ईटिंग द सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन हियर. मैं सुबह से यहां हूं. आई हैव बीन आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग. मैं यहां सुबह से हूं. आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग. मैं जानता हूं आप यहां सुबह से हो. आई हैव बीन सिंस इन द मॉर्निंग. नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं आप यहां सुबह से हो. आई नो यू हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग. आई बीन हियर इन द सिंस मॉर्निंग. आई नो यू हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग. ठीक है. मैं बिजी हूं. यस सर. मैं वेस्ट बंगाल से हूं. इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. एक्सीलेंट. ओके. मैं 2 महीने से वेस्ट बंगाल में हूं. आई हैव बीन इन वेस्ट बंगाल सिंस
2 months. देखिए आपने कहा सिंस 2 months, मुझे आप बताइए कि आई हैव बीन इन वेस्ट बंगाल सिंस 2 months होता है या हैव बीन इन वेस्ट बंगाल फॉर 2 months होता है? For 2 months. यस क्या डिफरेंस है सिंस और फॉर में? Um, सिंस का उपयोग होता है किसके साथ? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का उपयोग होता है किसके साथ? Period of time. पीरियड ऑफ टाइम, है ना? तो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, दो वर्ड होते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मैंने कहा सुबह से, सिंस मॉर्निंग, शाम से, सिंस इवनिंग, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून, है ना? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, संडे से, सिंस संडे मंडे, है ना? ये इनके सबके साथ आप क्या लगाओगे? सिंस। क्या लगाओगे? सिंस। फॉर लगाओगे आप किसके साथ? पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा 10 सेकंड से फॉर 10 सेकंड्स, 15 मिनट से फॉर 15 मिनट्स, 3 घंटे से फॉर 3 hours। आपने कहा मैं इस क्लास में 3 घंटे से हूं, बताओ इंग्लिश में क्या कहोगे? आई हैव बीन इन दिस क्लास फॉर 3 hours। बोलिए एक बार। I have been in the class फॉर 3 hours। for 3 hours. देखो सेकंड, सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट, मिनट से बड़ा क्या होता है? आर, आर से बड़ा बताओ क्या होता है? डेज। Days. जैसे आपने कहा मैं 5 दिन से इस क्लास में हूं, आई हैव बीन इन दिस क्लास फॉर 5 days। ठीक है? डेज से बड़ा होता है वीक। आपने कहा मैं 2 सप्ताह से अपने घर हूं, आई हैव बीन एट माई होम फॉर 2 weeks। मैं 5 महीनों से या 6 महीनों से मैं अपने घर पर हूं, आई हैव बीन एट माई होम फॉर 6 months। मैं 2 साल से अपने घर पर हूं, आई हैव बीन एट माई होम फॉर 2 years। गेटिंग? इन सब के साथ आपको 4 लगाना है। जो टाइम पीरियड होगा उसके साथ 4 लगेगा, और जो एग्जैक्ट टाइम है, जैसे आपने कहा मैं यहां 6 बजे से हूं, आई हैव बीन हियर सिंस 6 o'clock। मैं पिछले संडे से हूं, आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट संडे, यू नो? चलो मैं तैयार हूं। गजाला जी थोड़ा मैं चाहता हूं आप बोलें, ऐसा लगना चाहिए आई एम टॉकिंग विद समवन, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, कोई डर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मैं घर पर हूं, I am at home. मैं तैयार हूं, I am ready. मैं बोल सकता हूं, I can speak. आई कैन स्पीक, मैं पढ़ा सकता हूं, I can teach. आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता था, I could teach. एक्सेलेंट, मैं पढ़ा सकूंगा, I will be able to teach. आई विल बी एबल टू टीच। आपको वहां नहीं जाना चाहिए, You should not go there. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, You must go there. एक्सेलेंट, यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, You ought to go there. यू ऑट टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ता है, You have to go there. यू हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ता था, You had to go there. आपको वहां जाना पड़ेगा, You will have to go there. यू विल हैव टू गो देयर, आप वहां जाया करते थे, You used to go there. आपको वहां जाने की जरूरत है, You need to go there. और आपको वहां जाने की हिम्मत है। You dare to go there. ओके आप में इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है, You dare to teach टीच English. इंग्लिश, मैं दौड़ सकता हूं, I can run. आपको दौड़ना चाहिए। भाई सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन चाहिए मुझे 100%। आपको दौड़ना चाहिए, You should run. आपको अवश्य दौड़ना चाहिए, You must run. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, You must go there. आपको वहां जाना चाहिए, You ought to go there. आपको वहां जाना पड़ता है, You used to go there. नहीं, You have to go there. यू हैव टू गो देयर, मैं तैयार हूं वहां जाने के लिए, I am ready to go there. एक्सीलेंट, मैं 2 दिन से तैयार हूं वहां जाने के लिए, I have been ready to go हाँ टू गो देयर फॉर 2 days, बोलो। there for 2 days. आई हैव बीन रेडी फॉर 2 days टू गो देयर, मैं 2 दिन से तैयार हूं वहां जाने के लिए। मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जरा बोलो तो एक बार फटाफट, मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। मैं घर पर हूं,
I'm at home. मैं घर पर नहीं हूं। I'm not at home. क्या बात, क्या मैं घर पर हूं? Do you at home? नहीं, क्या मैं घर Do, पर हूं? एम आई एट होम। ठीक है, am I? एम आई एट होम। जिनका भी आज फर्स्ट डे है वो पूरी तरह से ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल, सृष्टि आप अपना रेजेंट कर दो, सृष्टि जायसवाल, हम आपको बिल्कुल अलाउ करेंगे। ठीक है, हाँ, सृष्टि जायसवाल है, अनु यादव है, परी है, ठीक है ना, एवरीबडी। आई विल टॉक टू यू ऑल। मैं चाहता हूं सभी पहले इधर ध्यान दो, एवरीबडी। मैंने अभी कमेंट ऑफ कर दिए, सभी ध्यान देना। क्या नाम है आपका? Vidhi. विधि, ओके। मैं घर पर हूं। I'm at home. मैं घर पर नहीं हूं। I'm not at home. क्या मैं घर पर हूं? Is I? Am नहीं, I? एम आई एट होम, एम आई एट होम। ओके, मैं घर पर था पास्ट में। I was at home. एक्सलेंट। मैं घर पर नहीं था। I was not at home. आई वॉज नॉट एट होम। क्या मैं घर पर था? Was I at home? एक्सलेंट, वॉज आई एट होम, वेरी गुड। मैं घर पर हूंगा। I will be at home. मैं घर पर नहीं हूंगा। I will not be at home. क्या मैं कल घर पर हूंगा? Will I be at home? अब ऐसे ही हमें ना इनको नेगेटिव बनाना है। आपने कहा मैं सुबह से घर पर हूं। I have been. एट होम। I have been at home since morning. मैं सुबह से घर पर नहीं हूं। I have not been at home since morning. आई हैव नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से घर पर हूं? Have I been at home since morning? Have I been at home since morning? That is. मैं सुबह से घर पर था। I had been at home since morning. मैं सुबह से घर पर नहीं था। I had not been at home since morning. क्या मैं सुबह से घर पर था? Had I at home since morning? Had I been at home Since morning. since morning? Okay. मैं सुबह से घर पर हूंगा। I will have been at home since morning. मैं सुबह से घर पर नहीं हूंगा। I will not have been at home since morning. क्या मैं सुबह से घर पर हूंगा? Will I have been at home since morning? Will I have been at home since morning? आ रहा समझ में आपको? Yes, sir. ओके, ऐसे ही आप जब इसको बनाएंगे विधि टू हैव इन परफेक्ट टेंस, इसमें भी आपको वही रूल अप्लाई करना है। इसमें डू डज नॉट नहीं लगाना। जैसे इसमें नेगेटिव में क्या लगाते हैं हम? डू डज नॉट। इसमें कभी डू डज नॉट नहीं लगाना है, इसमें डायरेक्ट नॉट लगाना है। क्या लगाना है? Not. जैसे आपने कहा मेरे पास ये पेन 2 महीने से नहीं है। I don't have. Sorry. नो नो नो, आई हैव नॉट हैड दिस पेन फॉर 2 months। क्या कहोगे? I have not. I have not had this pen या I have not got this pen for 2 months। मेरे पास मेरी कार 2 महीने से नहीं है। I had I not. have not had my car और I have not got my car for 2 months। For 2 months. ठीक है, मेरे पास है ही नहीं मेरी कार 2 महीने से। I have not got my car for 2 months। I have not had my car for 2 months। मेरी कार मेरे पास 2 महीने से थी नहीं। I had not got I my. have not had my car for 2 months और मेरी कार मेरे पास 2 महीने से नहीं होगी। I will not have my car for since. इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ये परफेक्ट टेंस में है। तो परफेक्ट टेंस में ये हैज़ो के बाद नॉट लगता है, हैड के बाद नॉट लगता है, विल के बाद नॉट लगकर हैव आता है। बाकी ये हैड एज इट इज आपका रहेगा। इंटरगेटिव में आप आगे किसको लोगे? हैज़ो को। Have. क्या ये पेन आपके पास 2 महीने से है? Has this pen have Have you had this pen? क्या बोलेंगे? Have you had this pen for 2 months? Have you had this pen for 2 months? क्या ये पेन आपके पास 2 महीने से था? Had you this pen for 2 months? Had you had this pen for 2 months? और क्या ये पेन आपके पास 2 महीने से होगा? Will I have? Will you have had? Will you have had this pen for 2 months? ठीक है, अब मैं आपसे ना बहुत ही सरल सेंटेंस पूछ रहा हूं जो इंटरगेटिव होंगे, है ना? क्या आप बिजी हो? Are you busy? क्या आप घर पर बिजी हो? Are you busy at home? एक्सेलेंट। क्या सीमा आपकी सिस्टर हैं?
Is Seema is your sister? Is Seema your sister? Okay. क्या सीमा आपके साथ 2 घंटे से है? Is Seema Has has Seema been been with with you you since for 2 hours? for 2 hours. Okay. क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकती हो? Can you teach English? क्या आप इंग्लिश बोल सकती हो कॉन्फिडेंटली? Can you speak English confidently? Is there somebody with you? कोई है आपके साथ में? तो आइए आज से हम ऑफिशियली टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा 6th डे है और आज मैं आपको 12 टेंस में से 9 टेंस अच्छे से पढ़ाऊंगा। लास्ट के 3 टेंस आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कल मैं आपको 2 चीजें पढ़ाऊंगा। एक आपको पढ़ाऊंगा टेंसेस, जो लास्ट के 3 बचेंगे वो, एंड सेकंड आई विल टीच यू वर्ब लिस्ट। जी हाँ, कल से हमारी वर्ब लिस्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नाउ एवरीवन, सबसे पहले अगर मैं टेंसेस की बात करूं तो अंग्रेजी भाषा टेंसेस के बिना अधूरी है। मतलब आपको टेंसेस आने ही चाहिए। दिस इज वेरी 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 क्रूशियल दैट इन इंग्लिश स्पोकन, इन इंग्लिश लर्निंग, यू मस्ट नो टेंसेस because your language English will be considered incomplete without tenses. So that is why it is extremely important that you must know tenses. Let's talk about the varieties of sentences that exist. On the basis of sentences, we have 3 main categories. The first one is present, the second one is of course past, and the third one you must know future. ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं और इसमें हम लोग इनकी वैरायटीज 4 बनाते हैं, जिसमें एक वैरायटी होती है सिंपल, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट भी होता है। दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है आपका परफेक्ट, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप यहां पर देखेंगे तो आपके सामने 4 अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेगी। पहली मिलेगी सिंपल, दूसरी मिलेगी कॉन्टिन्यूअस, तीसरी मिलेगी परफेक्ट और चौथी मिलेगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल की कितने बने? 3। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। दूसरा देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के भी 3। अगला देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट के कितने? 3। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितने? 3। टोटल कितने हो गए? 12। तो 12 टेंस कैसे बने, अब आप एक बार फिर से समझिए। ये है आपका सिंपल या इंडेफिनिट। पहला प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से आपके 12 टेंस होते हैं और ये 12 टेंस आपको समझने के लिए 4 नाम आपको याद करने होंगे स्टूडेंट। सिंपल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। इसके हम 3 बनाएंगे। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के भी हम 3 बनाएंगे। तीसरा है आपका परफेक्ट, परफेक्ट के भी हम 3 बनाएंगे। पहले ये 3 को सीखे हम, जो सिंपल वाले हैं। अब आप सबसे पहले तो सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं कि आप अपनी ये जो फिंगर है, 4 फिंगर और एक थंब, तो ये 4 फिंगर की मदद से मैं आपको ये पूरे टेंस सिखा रहा हूं। ध्यान दो, ये जो सबसे छोटी फिंगर है इसको आप नाम दोगे सिंपल। तो सबसे स्मॉल फिंगर है, इसको नाम क्या देना है आपको? सिंपल। ये जो रिंग फिंगर है जिसमें आप रिंग पहनते हैं, ये आप लोगों की इसको नाम देना कॉन्टिन्यूअस। ये जो मिडिल फिंगर है इसको आप नाम देंगे परफेक्ट। और ये जो इंडेक्स है, इस फिंगर को कहते हैं इंडेक्स। ये जो फिंगर है इंडेक्स, इसको आप नाम देंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम देंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 फिंगर को 4 नाम दे दो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी सारी फिंगर्स में 3 ब्लॉक बने हैं। ब्लॉक नंबर 1 प्रेजेंट, ब्लॉक नंबर 2 पास्ट, ब्लॉक नंबर 3 फ्यूचर। ब्लॉक नंबर 1 प्रेजेंट, ब्लॉक नंबर पास्ट, ब्लॉक नंबर 2 पास्ट और ब्लॉक नंबर 3 फ्यूचर। तीनों में आपको 3 अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। तीनों में 3 अलग अलग ब्लॉक जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है वो देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिंपल की, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इंडेफिनिट। जब आप किसी काम को करते हो, क्या कहा मैंने? ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव, बी फोकस्ड। जब आप किसी काम को करते हो तो वो आपका सिंपल या इंडेफिनिट होता है। ये आपकी स्मॉल फिंगर, ध्यान देना। पहले तो 12 टेंस के नाम बोलते आना चाहिए। चलो देखते हैं किस किस को बोलते आ रहा है 12 टेंस के नाम। नाउ
सबसे पहला टेंस है हमारा जो काम आप करते हो। Yes, sir. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई I टीच teach इंग्लिश। English. यस, यहां पर दो वर्ब आपको दिख रही है, V1 और V5। आप मुझे बताएंगे V1 V5 का क्या है? Yes, sir. V5 में सर E और ES लगता है और V1 फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। ये देखिए वर्ब की हमारी 5 फॉर्म्स अलग अलग होती है इस तरीके से। जैसे एक वर्ब आपने ली, टू प्ले, Yes, sir. टू कम, टू टीच, टू गो, टू एक्सप्लेन, दीज आर द फर्स्ट फॉर्म। ओके, Yes, sir. प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताएं आप? Played. वेरी गुड। कम की सेकंड फॉर्म? Came. कैम। टीच की सेकंड फॉर्म? Taught. टॉट। गो की सेकंड फॉर्म? Went. और एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म? Explained. ये सब सेकंड फॉर्म हो गई। Yes, ठीक है, sir. लेकिन जो एस और ईएस वाली फॉर्म होती है ना, उसमें एस लगता है। Plays. प्लेज, Comes. कम्स, teaches, Yes. goes Goes. and explains, Explains. राइट? Yes, sir. Yes, अब sir. देखिए यहां पर ऐसी थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म, अभी इसकी नीड नहीं है तो इसको हम लिख नहीं रहे। तो हमें Okay, sir. आइदर वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, है ना? Yes, sir. अब हमें यह पता करना है कि हमें किसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है और किसके साथ फिफ्थ फॉर्म लगानी है। सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका एक निंजा टेक्निक है कि भाई जो सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा, क्या होगा? Yes, sir. Singular third person. उसके साथ आप लगाओगे V5, और जितने भी आपके फर्स्ट पर्सन हो गए, प्लूरल हो गए, उन सबके साथ लगाओगे आप V1। Okay, तो sir. V1 लगता है I के साथ, U के साथ, You के साथ, V के साथ V और के they के साथ, साथ। they बाकी के साथ. he, He, she, she, it और कोई भी it. सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाओगे? V5। Yes, sir. ठीक है, अब आपने कहा Yes, sir. वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेस क्रिकेट होगा कि Plays ही प्ले cricket. क्रिकेट होगा? He plays cricket. एक्सीलेंट, ही Plays प्लेस cricket. क्रिकेट। ठीक है, Yes, sir. Yes, हाँ। sir. लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो? I play cricket. हाँ, मैंने कहा वह कॉलेज जाता है, तो ही गोज टू कॉलेज कि ही Goes गो टू to- कॉलेज? He goes to college. और अगर आप कहेंगे मैं कॉलेज जाता हूं तो? I go to college. आई गो टू कॉलेज। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं? I teach English. एक्सीलेंट, आई टीच इंग्लिश। मैं यहां आता हूं? I come here. आई कम हियर। मैं वहां जाता हूं? I go there. आई गो देयर। मैं वहां गया? I went there. आई वेंट देयर। मैं वहां जाऊंगा? I will go there. आई विल गो देयर। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा? I will teach English. आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं? I आई टीच I- इंग्लिश। I आई teach टीच English. इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, जो काम आपने किया। I taught English. एक्सीलेंट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। मैंने यहाँ वेंट लिख दिया, वेंट नहीं आएगा, यहाँ V2 आएगा। क्या आएगा? Wait. हाँ, V2 मतलब वो आपकी सेकंड फॉर्म है ना, Second form. Yes, sir. और यहां पर आएगा आपका अगेन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, Oh, yes, sir. चलो। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा? I will teach English. मैं वहां जाऊंगा? I will go there. अब ये जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये दर्शाता है जो कुछ भी आप करते हो। Yes, sir. चलो चलो प्यारे जी, अच्छी बात है। आइए, आपसे सेंटेंसेस पूछना है, रिप्लाई करना है ना, और थोड़ा उसको सिस्टमेटिक और प्रिपेयर करना है। अभी तो आपने और अच्छा बोला, लेकिन और उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा वो। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। I understand. मैं सब कुछ समझता हूं। I understand everything. मैं सब कुछ समझ गया। I understood everything. एक्सीलेंट। मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। I will understand everything. ओके, मैं बोलता हूं। I speak. मैंने बोला। I spoke. मैं बोलूंगा। I'll speak. आई विल स्पीक। मैं पढ़ाता हूं। I teach. आई टीच। मैंने पढ़ाया। I taught. आई टॉट। मैं पढ़ाऊंगा। I'll teach. आई विल टीच। ओके, मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा। I'll make sentence. आई विल मेक सेंटेंसेस। मैं आपकी हेल्प करूंगा। I'll help you. मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। I'll not help you. मैंने आपकी हेल्प नहीं की।
I didn't help you. I didn't help you. मैं वहां नहीं गया. I didn't go there. मैं वहां नहीं जाता हूं. I do not go there. I do not go there. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं. I teach English. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं. I do not teach English. Okay, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. I am teaching English. I am teaching English. Okay, मैं लिख रहा हूं. I am writing. मैं लिख रहा था. I was writing. I was writing. और मैं लिख रहा हूंगा. I will be writing. I will be writing. मैं पढ़ा रहा हूंगा. I will be teaching. Okay, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था और मैं पढ़ा रहा हूंगा. ठीक है ना. मैं दौड़ रहा हूं. I am running. मैं नहीं दौड़ रहा हूं. I am not running. मैं दौड़ रहा था. I was running. मैं नहीं दौड़ रहा था. I was not running. मैं दौड़ रहा हूंगा. I'll be running. मैं नहीं दौड़ रहा हूंगा. I'll not be running. I will not be running. चलो चलो ठीक है. प्यारे भाई अच्छा कर रहे हो आप, है ना. Thank you. You have to attend the session regularly. चलो कोई नहीं, जितना बने उतना बोलना. अभी आप हम ज्यादा टेंस नहीं पढ़ रहे हैं. अभी आज का टारगेट है 9 टेंस कंप्लीट करना है अपने को, है ना. चलो मैं पढ़ाता हूँ. I teach. मैंने पढ़ाया. I taught. I taught की I taught. I taught. I taught. मैं पढ़ाऊंगा. I will teach. मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. I am teaching right now. I am teaching right now. मैं पढ़ा रहा था. I was teaching. I was teaching. Okay, I was teaching. मैं पढ़ा रहा था जब आपने मुझे कॉल किया. I was teaching. No, sir. I was teaching when you called me. When you call me. Okay, मैं पढ़ा रहा हूँगा. I will be teaching. I will be teaching. Okay, मैं पढ़ा चुका हूँ. I have teach. नहीं, मैं पढ़ा चुका हूँ. जो काम आप कर चुके हो, आपने कर लिया है. I have taught. बोलो. I have taught. हाँ, मैं पढ़ा चुका था. I had taught. I had taught. और फ्यूचर में मैं पढ़ा चुका हूँगा. I will taught. I will have taught. अब आपको एक काम दे रहे हैं हम, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं. आपको एक सेंटेंस को पूरे 9 टेंस में बनाना है. क्या लगता है, बना लेंगे? ट्राई करते हैं. कोशिश तो करते हैं. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. पहले मैं बनाता हूं, पहले मुझे सुनिएगा ना. मैं क्रिकेट खेलता हूं. I play cricket. मैंने क्रिकेट खेला. I played cricket. मैं क्रिकेट खेलूंगा. I will play cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा हूं अभी. I am playing cricket now. मैं क्रिकेट खेल रहा था. I was playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा. I will be playing cricket. मैं क्रिकेट खेल चुका हूं. I have played cricket. मैं क्रिकेट खेल चुका था. I had played cricket. और मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा. I will have played cricket.